Good evening, my dear students. Today in this video I am going to solve extract of the poem, the very first poem of your syllabus, Dust of Snow. You must give your entire attention to understand how extracts will be solved. Have a look on this extract. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree is the first stanza. I have already told the central idea of the poem. I have already described the poem. I have sent video also. So keeping the entire poem in your mind, you are supposed to solve these extracts. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस तरीके से एक कौए ने शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो. Yes, you know that the crow was sitting on the hemlock tree and the poet was sitting under the hemlock tree. As crow sat on the hemlock tree and it shook its feathers, the dust fell down on the poet. Okay? तो जैसे जिस प्रकार से कौए ने मेरे सर पर या मेरे ऊपर, जो कौआ हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था धतूरे के पेड़ पर, उसने मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो डाला है. ठीक है, वो ये एक्सट्रैक्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर मी रेफर्स टू. हु इज मी हेयर? ऑन मी. मी रेफर्स टू द पोइट. द क्रो shook down that dust of snow onto the poet. So me refers to the poet. B. This is your correct answer. B. Okay. Next one. On the poet the dust of snow was dropped by. किसने डाली थी उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो? चूरा उसका बर्फ का, particles of snow. Hemlock tree, no. Irrelevant. A crow, the air, all of those. No. The correct answer is a crow. Crow shook down the dust of snow on the poet. Next one. The poet is walking by a. What the answer of this line? The poet is walking by a. किधर से गुजर रहा था वो? इसको आप कह सकते हैं. The poet is walking by a forest. Okay. Here the signifier of gloom is. What the signifier of gloom? Gloom किसके लिए आया है? These two lines are different from the extract actually. So if you have read the poem, then you can answer. Gloom means sad, sorrowful. Okay? दुखी बैठा हुआ था, sad बैठा हुआ था. यहाँ पर उसका जो मूड था, मूड ऑफ द पोइट वाज sad. He was depressed actually. He was not feeling well that day. Next. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Has given my heart a change of mood. As he shook down the dust of snow on the poet, his mood was changed. His mood, sad mood, changed in happiness. He became happy. His mood became fresh. Disappointment removed. He was
pleased, okay, and shaped some part of a day I rued. वो दिन जो मैं बर्बाद करने वाला था, the entire day that was going to be wasted in the same manner in sad mood, okay, that part of the day was saved by the crow. कौवे ने उसको ये एक्शन करके डस्ट डाल के उसको बचा लिया, उस दिन को, पूरा दिन उसका बच गया जो बेकार होने वाला था. क्वेश्चन इज द क्रो स्टैंड्स फॉर एन इल ओमेन, गुड लक, हैप्पीनेस, none of these. Happiness, good luck, ill omen. Ill omen, do you know what the meaning of ill omen? अपशगुन. ओके, वैसे तो अकॉर्डिंग टू द क्रो दिस इज द राइट आंसर इन एन इल ओमेन. अपशगुन माना जाता है धतूरे को, पेड़ को भी, कौवे को भी. ठीक है, तो आप इसको आंसर भी लगा सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा. ओके, बट अकॉर्डिंग टू पोएम आप या एक्सट्रैक्ट देखें उसके लिए तो गुड लक हुआ, उसने सही कर दिया उसको. बट दिस वुड बी मोर सोफिस्टिकेटेड आंसर देन दिस. ओके, गुड लक. नेक्स्ट, व्हाट चेंज द पोइट्स मूड. किस चीज़ ने उसके मूड को चेंज कर दिया? इज दैट हेमलॉक ट्री, द क्रो, स्नोफ्लैक्स, ऑल ऑफ दीज. कौवे स्नोफ्लैक्स जो बर्फ़ का चूरा था उसने, कौवे ने या हेमलॉक ट्री ने, किसने उसका मूड सही कर दिया? तो एक्चुअली स्नोफ्लैक्स गिरी थी तो मूड चेंज हो गया, बट उसने, कौवे ने उसको जो है गिराया था वहाँ से, और हेमलॉक ट्री से. तो आई थिंक दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट, बिफोर दिस पोएम पोइट वाज इन मूड. किस मूड में था पोएम से पहले? इन सैड मूड. ओके, इफ द पोइट हैड नॉट एक्सपीरियंस सच अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस इट वुड हैव रिग्रेटेड एट द पार्ट ऑफ द होल डे. ठीक है, पूरे दिन उसको रिग्रेट होता रहता, वो दुखी बना रहता अगर ये घटना नहीं होती. ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा दिन उसका दुखी और सैड मूड में ही जाता, अनप्लीजेंट मूड में जाता. ठीक है, वो चेंज हो गया था उसका. ओके, नेक्स्ट, द वे shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. Again that extract, the poet is sitting beside a crow, dust of snow, a maple tree, hemlock tree. किसके साथ बैठा हुआ है? तो that was, he was sitting under the hemlock tree, beside the hemlock tree. This is the correct answer. Okay, पेड़ के पास ही तो बैठा था, hemlock tree के. What fell on the poet? क्या गिरा उसके ऊपर आके? डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ की डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की डस्ट, या डस्ट ऑफ रेन, और डस्ट ऑफ क्रो. नो, और दिस इज द करेक्ट आंसर. ये सभी ऑल थ्री ऑल जो है ये इररिलेवेंट हैं. डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की चूड़ जो गिरा था उसके ऊपर, पार्टिकल्स गिरे थे आकर, उससे उसका मूड चेंज हो गया. डस्ट ऑफ स्नो. द हेमलॉक ट्री वाज शेकन बाय अ, किसने उसको हिला दिया था हेमलॉक ट्री को आके? क्रो. किसने हिलाया था? हेमलॉक ट्री वाज शेकन बाय अ क्रो. एक कौवे ने आके उसको हिला दिया था. ओके, नेक्स्ट, द ट्री टॉप्स वर कवर्ड विथ. पेड़ की पत्तियां जो थी किससे कवर्ड थी? क्या उनके ऊपर छाया हुआ था? विद डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, स्नोफ्लैक्स और डस्ट ऑफ स्नो ये छाई हुई थी, छाया हुआ था उसकी पत्तियों पर पेड़ की. ठीक है, नेक्स्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैज ड्यूड.
दिस पैराग्राफ एक्सचेंज अगेन। इन वाट मूड वाज द पोइट अर्लियर, किस मूड में था सबसे पहले वो? खुश, जॉयस, खुश मूड में था? खुश नहीं था। सैड, दुखी था। वेदर ही वॉज प्लीजेंट, हैप्पी, किस मूड में था? सैड मूड में था वो। ओके, वर्ब गिनने से पहले। द पोइट्स स्पिरिट्स वर डैम्पेंडेड, डिक्रीज्ड, सप्रेस्ड, uplifted. Okay, uplifted. Next, the falling of snow dust on the poet was the sign for him, the pleasant sign for him, good sign for him. Okay, या गुड लक साइन फॉर हिम, ये भी आप कर सकते हैं। ऑन द पोइट सेव्ड हिज डे, तो ऑन द पोइट सेव्ड हिज डे, तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोइट सेव्ड हिज डे, या फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट सेव्ड हिज डे, उसने उसका पूरा दिन जो बेकार होने वाला था, खराब होने वाला था, उसको बचा लिया। ओके, so these thus you can solve your extract of this poem. Whenever you are there at the time of study of this poem, you are supposed to see this video so that you could better understand to complete them. Okay, and you also are supposed to note these extracts in your English notebook. And after completing your work, you are supposed to send a pic of your work on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, thank you. This is your home assignment. Okay, this work is your home assignment. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.